Hello students, myself Professor Suresh Asbe from SDSM Junior College Palghar welcomes you all in today's session. Today we are discussing about 12th physics topic electromagnetic induction. Up to this position we have discussed about the theory part of this electromagnetic induction. Today we are going to discuss about the numericals of electromagnetic induction. Before starting numericals, please like, share and subscribe my channel. Okay, and come to the point. We are going to discuss about the numericals from the textbook. There is unsolved numericals. Now look at the numerical number 4, question number 4 there. A horizontal wire 20-meter long extending from east to west is falling with a velocity of 10 meter is a normal to the Earth's magnetic field of 0.5 into 10 raised to minus 4 Tesla. What is the value of induced EMF in the wire? Now, first step all, we will discuss about the given data there. Given data, given terms. Which are the given terms are there? You are given L is equal to 20 meter. Okay, after that one you are given that is a, this is L there. Now here it is 10. Actually it is meter per second. It is V is given 10 meter per second. After that one you are given that is a magnetic field B is equal to 0.5 into 10 raised to minus 4 Tesla. Okay, yeah, we can able to write this one as 5 into 10 raised to minus 5 Tesla. आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो. And what we have to find is E, induced EMF. That you have to calculate there. Okay. Now we know that. क्या फॉर्मूला देखो अभी? E is equal to BLV. This is the formula for induced EMF there. Okay, now substitute the values. 5 into 10 raised to minus 5 into L it is 20 into V it is 10. That is equal to, if you multiply here it is, what you are getting? 20 into 10 that is a 200 into 5 that is a 1000. Okay, 1000 into 10 raised to minus 5. या ये 3 जीरो यहाँ पे कट हो गए, हम लोगों को मिलेगा 10 raised to minus 2. Okay, it is volt. Understood this one? या इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 10 into 10 raised to minus 3. यदि आप लोगों ने ये 2 जीरो सिर्फ कट किए तो हम लोगों को ऐसे मिल सकता है, that is volt. या इसी को आप लोग लिख सकते हो 10 millivolt. Understood this one? This is your answer, 10 millivolt. This much EMF is generated there. Got it? Now, next point there. Now, a metal disc is made to spin at 20 revolutions per second about an axis passing through its center and normal to its plane. The disc has a radius of 30 centimeter and spins in uniform magnetic field of 0.20 Tesla, which is parallel to the axis of rotation. Calculate A, the area swept out per second by the radius of the disc. Second, the flux cut per second by the radius of the disc.
and third one, the induced EMF of the disk. Okay, now first write the given data. Which are the given terms? Your given frequency, how much it is? 20 revolutions per second. Okay, this is given there, 20 revolutions per second. Got it? Now, after that one, you are given that the radius of the disk, that is a R. R is equal to 30 centimeter, means 0.3 meter. Okay, next one it is magnetic field. B is equal to how much it is? 0.20 Tesla. That is given. Radius and magnetic field. Now you have to calculate one by one. Now A, what you have to find there? That is the area. Area swept out per second. By the radius of the disk. Okay, that you have to find. And this is equal to, remember here it is, this is equal to frequency into area swept by one turn. Area swept out by one turn. Okay, means we can able to write here it is frequency F into area swept by one turn, means it is completing one circle. That's why area of a circle here it is pi r square. That means that is equal to, what is it, 20 into 3.14 into r square, that is 0.3 square, that is 0.09. Okay, now that is equal to, if we multiply here it is, what we are getting, 5.652. Okay, it is meter square. If we multiply here it is, we are getting this much value there, that is nothing but the area swept per turn by the radius of the disk. Now remember, because that is, it is a revolving. Now next quantity from the same question there, that we have to find, that is the B part. What is it? The flux cut per second by the radius of the disk. Now B part is there. The flux cut per second by the radius of the disk. It is flux cut per second, and that's why it is the d phi by dt. Okay, per second, that you have to calculate there. And generally we are well known that it is a per second, that is mean time you are given, that is a 1 second there. Okay, now phi, magnetic flux, that is nothing but the magnetic field into area. That is a general term is there. Now B into area, already we have calculated F into pi r square. This is the area swept, that is equal to, so for the values here,
What is value for B? 0.2, sorry, and F into pi r square, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया ऑलरेडी, इट इज 5.652. Okay, that means if we multiply here, it is what we are getting, 1.134. Okay, we are getting 1.1304, sorry, and it is Weber. It is magnetic flux is there per second. That's why it is Weber per second. We can able to write. Okay. Now C point is there. That is the induced EMF in the disk, and that is equal to E. Okay, therefore we can able to write there is a magnitude of E, that is nothing but the d phi by dt, and already we have calculated here, it is 1.1304. Okay, it is volt. You can write it is 1.130 also. Okay, this is nothing but the EMF induced in the disk when the disk is rotated with that particular frequency there. Understood this? Now go to the next point there. Now question number 6. This question number 6, that is from the numerical or textbook there, that you have to remember there. ये textbook का number है, ये याद रखो. ठीक है? A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in the coil, one coil, changes from 0 to 10 ampere in 0.2 seconds, what is the change in flux linkage with the other coil? Okay, now actually it is here, the question is changing, that is rate of change of flux linkage with the other coil, that we have to find there. Okay, textbook में गलत दिया था, टेक्स्ट बुक के आंसर के हिसाब से मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है. ठीक है, ओनली यू हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल. तो पहले हम लोग चेंज ऑफ फ्लक्स भी निकालेंगे, उसके बाद रेट ऑफ चेंज निकालेंगे. ठीक है, नाउ लुक एट द गिवन टर्म्स. गिवन डाटा देखो क्या है. को क्या मिल रहा है देखो, इट इज m is equal to 1.5 हेनरी. ओके, आफ्टर दैट वन, ये चेंज आप लोगों को याद रखना है, करंट का चेंज है. तो करंट जनरेटेड, दैट इज करंट दैट इज इंडिकेटेड I that is the initial current I have indicated here, it is 0 ampere, and IF, that is the final current. Okay, it is 10 ampere. Now change in time, that is also given there. Okay, you can write that is a dt there, that is equal to 0.2 seconds. AF सफिक्स है, इतना याद रखना, छोटा याद रखना है आप लोगों को. ये तो इफ लगेगा आप लोगों को. ओके, तो ये टाइम है और आप लोगों को निकालना है. पहले हम लोगों को डी फाई निकालेंगे हम लोग, और बाद में डी फाई बाय डी टी. एक्चुअली हम लोगों को क्वेश्चन डी फाई बाय डी टी निकालना है. ठीक है, ना तो पहले डी फाई कैसे निकालेंगे देखो. ना वी नो दैट
phi that is nothing but the m into I, ये जनरल फॉर्मूला है. ओके, phi is equal to m into I. तो phi 2 that is equal to m into I2. Okay, change in magnetic flux of the second coil because mutual inductance है, that is nothing but the m into change in current of the primary coil देना. ओके, तो मैं यहाँ पे m चेंज इन करंट लिखना है हम लोगों को, ये I है तो इसके जगह पे हम लोग m इंटू डेल्टा I1 ऐसे आप लोग लिख सकते हो. यदि ये d फाई लिख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे m I2 या IF माइनस II इनिशियल करंट. ओके, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो m कितना है वैल्यू, इट इज 1.5. ठीक है, नाउ इनटू IF कितना है, इट इज 10 माइनस 0. ठीक है, तो हम लोगों को 10 माइनस 0 10 मिला, तो हम लोगों को ये मिल रहा है 15. इट इज वेबर, इट इज अ डी फाई, दैट इज चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल. ठीक है, तो एक्चुअली ये डी फाई 2 है, तो ये डी फाई 2 मिला हम लोगों को चेंज इन फ्लक्स लिंकेज. अब हम लोगों को निकालना है रेट ऑफ चेंज. तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, दैट इज इक्वल टू डी फाई 2 बाय डी टी. ओके, ये हम लोगों को निकालना है. गॉट इट, मीन्स डी फाई 2 का वैल्यू कितना है 15 अपॉन डी टी का वैल्यू कितना है, देखो टाइम 0.2 सेकेंड्स. तो इससे हम लोगों का आंसर कितना मिलेगा, इट इज 75 वेबर पर सेकंड, जो टेक्स्ट बुक में आंसर है और उसका यूनिट भी आप लोगों को वेबर दिया है. ओके, जो 75 आंसर दिया था, लेकिन इट इज अ वेबर पर सेकंड क्योंकि हम लोगों ने रेट निकाला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज दैट यू हैव टू फाइंड. तो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में आप लोगों को ये जो करस्पॉन्डिंग चेंज मैंने बताया यहाँ पे, तो ये चेंज आपको करना है. ठीक है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट यू हैव टू कैलकुलेट देयर. और यदि सिर्फ रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होता तो आप लोगों का आंसर ये डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू 15 वेबर मिलता. ठीक है, ये है डी फाई 2 बाई डी टी. ओके, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सेकंड कॉइल. गॉट इट, तो आप लोग ये करस्पॉन्डिंग चेंज टेक्स्ट बुक में करोगे. ठीक है, now go to the next question. अब देखो, a long solenoid consisting of 1.5 into 10 raised to 3, ये 10 raised to 3 है, 10 raised to 3 turns per meter has an area of cross section of 25 centimeter square. A coil C consisting of 150 turns, that is NC, is wound tightly around the center of the solenoid. Calculate for a current of 3 ampere in the solenoid. First, the magnetic flux density at the center of the solenoid. Second, the flux linkage of the coil C. And third, the average EMF induced in the coil if the current in the solenoid is reversed in the direction in time of 0.5 seconds. तो यदि हम लोगों को ये टर्म्स दिए है तो हम लोगों को क्या क्या निकालना है वो देखो पहले. ओके, नाउ फर्स्ट राइट द गिवन डाटा. ना क्या दिया, देखो पहले हम लोगों को दिया है नंबर ऑफ टर्न्स, n इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू 3. ओके, इट इज पर टर्न, टर्न्स पर मीटर है, तो आप लोग इसको मीटर इनवर्स लिख सकते हो, पर टर्न. ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर दैट इज गिवन. सेकंड वन दैट इज गिवन एरिया, A इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है,
इसका मतलब 25 इंटू 10⁻², ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर आप लोगों को मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करना है, तो ये हो गया 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. Got it? Now after that one, number of turns of the coil that is given NC कितना दिया है 150. ओके, ये यहाँ पे 150 दिए, ये एरिया दिया हुआ है. और इट बाद में यहाँ पे हम लोगों को करंट दिया है I is equal to 3 एम्पियर, दैट इज गिवन. ठीक है. नाउ अनदर टर्म इज देयर, सी के लिए हम लोगों को और एक कंडीशन दिया है, दैट इज dt. इसको लिखते हैं हम लोग dt इज इक्वल टू 0.5 seconds. Okay, these are the terms given. One thing is given here, it is missing in the given data. Text यहाँ पे लिखना मैं भूल गया. तो एक टर्म आप लोगों को दिया हुआ है, that is a mu zero, permeability of a free space. Okay, and the value is constant fixed. It is 4 pi into 10⁻⁻⁷ SI units. Okay, you can write that is a SI units there. या उसका यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर there. Okay, टेस्ला मीटर पर एम्पियर. आप लोग ये भी यूनिट लिख सकते हो, या सिंपली यू कैन राइट दैट इज अ एसआई यूनिट देयर. तो दीज आर द गिवन टर्म्स, ये गिवन टर्म्स है. तो अभी वन बाय वन वी विल कैलकुलेट द टर्म्स. तो पहले क्या निकालना है, देखो मैग्नेटिक डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी inside the solenoid. And that is a B is equal to, ये जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, μ0 Ni, that is equal to 4 pi into 10⁻⁷ into n का वैल्यू कितना है 1.5 into 10⁻³ मतलब कितना हुआ, इट इज 1.5 into 10⁻³ एज इट इज लिखा मैंने, इंटू करंट का वैल्यू कितना है 3 है. ओके, तो हम लोगों को ये मल्टीप्लाई करना है. और इट दैट इज इक्वल टू, अब देखो ये 1.5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, मिला हम लोगों को 15 4 जार 60, तो ये मिल गया 6 इंटू ये 3, तो ये हो गया 18 इंटू ये पाई का वैल्यू मैंने लिखा 3.14 इंटू ये 10⁻⁻⁷, ये 10⁻³ कितना हुआ 10⁻⁻⁴. और इट अब इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को मिलने वाला है कितना, देखो इट इज नियर अबाउट 56.56. तो 56.56 इंटू 10⁻⁻⁴, या वी कैन एबल टू राइट इट इज 5.656 into 10⁻⁻�3. Okay, and it is a magnetic field, that's why it is Tesla. That is the first quantity, magnetic flux density inside the solenoid. It is 5.656 into 10⁻⁻³ Tesla there. Got it? अब second quantity क्या है, देखो the flux linkage in the coil, that you have to find. तो B part, flux linkage of the coil. It is phi C, that is equal to NC, number of turns, into phi, where phi is nothing but the magnetic flux linkage of the one turn. एक टर्न के लिए कितना है वो देखना है. ठीक है, तो इंटू NC, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं NC इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द वन टर्न, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया. ये जनरल फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, तो हम लोगों को phi C इज इक्वल टू NC इंटू B इंटू A मिला. ओके, तो वन बाय वन वी कैन एबल टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. अभी सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये हो गया 150 इंटू इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला है थोड़ी देर पहले 5.656 इंटू 10⁻⁻³ इंटू एरिया कितना है, देखो इट इज 25 इंटू 10⁻⁴. ओके ना, दैट इज इक्वल टू, तो इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है. अब
ये 150 इंटू 825 किया, ये 5.656, वैसे के वैसे 10⁻³ 10⁻⁴, इट बिकम्स 10⁻⁷, ठीक है, इनटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को कितना मिल रहा है, देखो 3750. ओके, नाउ इफ वी मल्टीप्लाई हियर इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, हम लोगों को मिल रहा है डेट इज 21210 इंटू 10⁻⁷. आप लोग घर पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है. नाउ अब इसमें से मैंने ये 4 डेसिमल यहां तक शिफ्ट किया. ओके, तो यहाँ पे 10⁻³ रहेगा, तो 2.121 इंटू 10⁻², ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से 4 डिजिट आगे शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे 4 पावर 4 से कम हो जाएगा, दैट इज 10⁻³ व्हाट इट. एंड मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसलिए इसका यूनिट क्या रहेगा, वेबर. इट इज φc. Understood this one? Okay, now third point, C point is there. Now what is it? The average EMF induced in the coil C is, okay, now E is equal to minus, okay, general formula what is it, d phi by dt. Okay, that's why we can able to write it is a phi final minus phi initial upon time, that is a t. Okay, it is minus sign is there. तो E इज इक्वल टू, ये माइनस साइन मैंने अंदर ले लिया, तो हम लोगों को मिलने वाला क्या, देखो फाई आई माइनस फाई एफ, ये निगेटिव पॉजिटिव होने वाला है अपॉन टाइम टी या डेल्टा टी आप लोग लिख सकते हो. ओके, या डी टी, व्हाट इट. बट एज वी आर व्हाट इज इट, यहाँ पे क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया है वो देखना है. अब देखो क्वेश्चन में क्या है, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल सी इफ the current in the solenoid is reverse in the direction. ओके, सिर्फ करंट का डायरेक्शन हम लोगों ने रिवर्स किया, ठीक है. तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होने वाला है. मींस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स जितना था उतना ही फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, लेकिन सिर्फ क्या होने वाला है, इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. तो अभी हम लोगों को वही यहाँ पे कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज बट फाई एफ फाइनल कितना होगा, इट इज सेम एज लाइक अ इनिशियल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए निगेटिव साइन आएगा. ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिवर्स्ड. तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, देखो E इज इक्वल टू फाई आई एज इट इज माइनस माइनस प्लस, तो हम लोगों को ये 2 फाई आई अपॉन डी टी ऐसे टर्म मिलने वाला है. और इट मीन्स मुझे मिल रहा है, देखो 2 फाई आई दैट इज अ फाई इनिशियल फ्लक्स, तो ये फाई आई है, फाई सी दैट इज नथिंग बट द फाई आई, तो 2.121 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन टाइम dt. चेंज कितना दिया है, 0.5. गॉट इट. तो 0.5 मतलब क्या होता है, ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है. 0.5 मतलब ये 0.5 को आप लोग ये 1/2 लिख सकते हो, राइट है ना. तो ये 1/2 ये ऊपर गया, तो हम लोगों को मिलने वाला है दैट इज ये 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 2.121 इंटू 10⁻⁻³ या इसी को मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को मिलेगा दैट इज 8.484 इंटू 10⁻³ होल्ड्स. गॉट इट. या ये तो ये 10⁻³ होल्ड्स के जगह पे आप लोग
इसको मिली वोल्ट भी लिख सकते हो। तो 10.484 मिली वोल्ट या 10.484 इंटू 10⁻³ वोल्ट आप लोग ऐसे आंसर लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो ये आप लोगों का इंड्यूस्ड ईएमएफ 8.484 मिली वोल्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। A search coil having 2000 turns with area 1.5 centimeter square is placed in a magnetic field of 0.60 Tesla. The field is moved rapidly out of the field in a time of 0.2 seconds. Now, calculate the induced EMF across the search coil. तो कितना EMF इंड्यूस होगा ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, now first write the given terms. गिवन डाटा देखो क्या है। You are given that is the number of turns, n is equal to 2000. Okay, now initial area it is AI लिखता हूं मैं, it is 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो it is 1.5 into 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को और क्या दिया देखो, इट इज मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, B is equal to 0.60 Tesla, that is given. Okay, and time is given there, T is equal to 0.2 seconds. ये 0.2 सेकंड किसके लिए लिया है? नाउ यहाँ पे आप लोगों को ये जो सेंटेंस है, ओके, तो ये सेंटेंस को अच्छे से याद रखना है। The coil is moved rapidly out of the field in the time. Out of the field इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे out of the field मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल का कुछ भी हिस्सा नहीं है। मतलब यहां पे आप लोग ऐसे बोल सकते हो, दैट इज AF फाइनल एरिया कितना होगा? 0, बिकॉज कॉइल इज मूव्ड आउट ऑफ द फील्ड। AF 0 है, मूव्ड आउट ऑफ द फील्ड है, और उस वक्त हम लोगों को निकालना है EMF। तो these are the terms that is given there. अब देखो जनरल फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या आता है, ये हम लोगों को मालूम है। एक कॉइल के लिए, एक टर्न के लिए हम लोगों का फॉर्मूला है d∅/dt। ये एक टर्न के लिए, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे निगेटिव साइन है। E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt एक टर्न के लिए। यदि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते हैं तो यहाँ पे n आएगा, सिर्फ इतना ही चेंज है। दैट इज इक्वल टू, वी कैन एबल टू राइट इट इज -n। अब देखो d∅ मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो B इंटू AF माइनस B इंटू AI। मैग्नेटिक फील्ड कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ कॉइल हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा रहे हैं, अपॉन dt। ये हम लोगों को ऐसे फॉर्मूले में चेंज हो रहा है। गॉट इट? तो ये निगेटिव साइन यदि अंदर ले लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है, ये निगेटिव होने वाला है। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या होने वाला है देखो, E इज इक्वल टू NBAI माइनस NBAF अपॉन dt। लेकिन ए फाइनल एरिया कितना है? 0। तो यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है कि ये एरिया की वजह से ये टर्म 0 होने वाला है। ऑलराइट, तो आप लोग लिख सकते हो दैट इज सिंस AF इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोगों को रिमेनिंग क्या होने वाला है देखो, ये यदि 0 हुआ तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या होने वाला है, NBAI अपॉन dt। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज देन। तो इतनी वैल्यूज हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है। इट इज 2000 into magnetic field 0.6 into area, it is
1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन dt या टाइम t, आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे आप लोग dt लिख सकते हो, dt इज इक्वल टू 0.2। ओके, दीज आर द चेंजेस। तो अब यहाँ पे कट क्या होने वाला है, देखो ये 0.2 यहाँ पे कट हुआ तो हम लोगों को मिला 3। ओके, तो इसके हिसाब से हम लोगों का आंसर क्या आने वाला है, देखो 1.5 इंटू 3 दैट इज 4.5। 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 होने वाला है, तो ये 9000 हुआ। ठीक है, 2000 इंटू 4.5, तो ये हम लोगों को मिला इट इज 9000 इंटू 10⁻⁴ होल्स। गॉट इट? तो ये यदि 10⁻⁴ यदि हम लोग हटाते, डेसिमल पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट करते, तो हम लोगों को ऐसे मिलेगा दैट इज 0.9 volts. This much EMF is induced there in the coil when that coil is rapidly moved out of the field. ठीक है, तो हम लोगों को ये अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे कैसे कन्वर्जन किया है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पे वो याद रखना है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो हम लोगों ने डी फाई के लिए कन्वर्जन किया है, बी इंटू ए एफ माइनस बी इंटू ए आई। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उसका गिवन डाटा देखो क्या लिखा है, हम लोग क्या लिखते हैं या क्या क्या दिया है वो देखो ना। An aircraft of wingspan 50 meter flies horizontally in a Earth's magnetic field. That is, this is nothing but the length. ठीक है, लेंथ ऑफ द विंग स्पैन। तो हम लोगों को मिला इट इज L is equal to 50 meter. Okay, now in a Earth's magnetic field, it is a B is equal to 6 into 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, एट ए स्पीड, ये हम लोगों को दिया है स्पीड, ये मैग्नेटिक फील्ड था, तो हम लोगों को ये V दिया हुआ है, इट इज 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हम लोगों को निकालना क्या है, देखो दैट इज E इज इक्वल टू निकालना है, दैट इज EMF इंड्यूस्ड। नाउ therefore EMF induced between the tips of the wings of the aircraft, and that is equal to E। हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है, E is equal to BLV, ये जनरल फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने यूज किया है। 6 इंटू 10⁻⁵ इंटू लेंथ 50 इंटू 400 वेलोसिटी। ओके, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 50 इंटू 400, इट इज 20,000। 20,000 इंटू 6, ओके, दैट इज 1,20,000। हम लोगों को इतना मिला इंटू 10⁻⁵। ओके, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁵, यहां से हटा दो तो हम लोगों को मिलेगा कितना, दैट इज 1.2 होल्ट्स। E इज इक्वल टू हम लोगों को मिला 1.2 वोल्ट। गॉट इट? तो जनरल फॉर्मूला हम लोगों को ये याद रखना है, BLV। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 10 थ्योरी क्वेश्चन है, इसलिए नहीं लिया है। ओके, जो बीच में जो क्वेश्चन नंबर गए हैं या मिस हुए हैं वो याद रखना है आप लोगों को, वो थ्योरी क्वेश्चंस है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स है वही मैंने ले लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11, now calculate the value of induced EMF between the ends of an axle of railway carriage 1.75 मीटर। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है। अब देखो गिवन डाटा क्या दिया है, देखो इट इज
L is equal to 1.75 मीटर. Okay, that is given. After that one, ये length हुआ. Now long traveling on a level ground with a uniform velocity of 50 किलोमीटर पर आवर. अभी तक हम लोगों को वेलोसिटी किसमें दिए रहे थे? देखो, मीटर पर सेकंड में. अभी हम लोगों को यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर में दिया है. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ अ मीटर पर सेकंड. तो किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन मीटर पर सेकंड करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आप लोगों को याद होगा, इट इज 5/18 से. इट इज मीटर पर सेकंड. ऑलराइट, यदि आप लोगों को ये 5/18 याद नहीं आता है तो किलोमीटर का आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो. देखो, इट इज 50 एज इट इज. किलोमीटर के मीटर करो, 1000 मीटर हो गए, और आवर्स के सेकंड में कन्वर्जन करना है. 1 आवर दैट इज नथिंग बट द 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स. तो ये ऐसे कट होते दो जीरो. ठीक है. अब यहां पे यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब देखो, तो A3A5, तो ये 5/3 इंटू 6 कितना हुआ? 18. तो इसलिए 5/18 से हर बार हम लोगों को वो याद रखना है कि ये जो फैक्टर है फाइव बाई 18 वाला कन्वर्जन का, किलोमीटर आवर का, किलोमीटर के ये हो गए मीटर्स, ये हो गए सेकेंड्स. तो हम लोगों को मिला 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर पर सेकेंड मिलता है. तो ये जो फैक्टर है वो अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, कन्वर्जन फैक्टर 5/18. तो थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ से रब कर देता हूं, आप लोगों को याद होगा इसलिए. ठीक है ना. अब देखो, दैट इज इक्वल टू, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो या ऐसे ही लिखा तो भी चलेगा. इट इज मल्टीप्लाइड, दैट इज 250/80 मीटर पर सेकेंड. अनदर थिंग इज गिवन. और क्या दिया है? ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है. इट इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. बी से डिनोट करो या हम लोगों को सिर्फ बी से मतलब है. इट इज 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला. दैट इज गिवन. ओके, तो हम लोगों को निकालना क्या है? ईएमएफ इंड्यूस्ड. फॉर्मूला आप लोगों का वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने यूज किया था. दैट इज, इन शॉर्ट, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equal to BLV. ओके, E is equal to B का वैल्यू कितना देखो, 5 इंटू 10⁻⁵ इंटू लेंथ 1.75 इंटू वेलोसिटी कितना है देखो, इट इज 250/18. दैट इज इक्वल टू, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो. यदि मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 1.75 को, तो हम लोगों को मिल रहा है दैट इज 8.75 इंटू 250/18. ओके, इंटू 10⁻⁻⁵. ऑडिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को मिला कितना देखो, इट इज 218.5/18 इंटू 10⁻⁵. अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, ये हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, इसलिए कितना इसको डिवाइड किया तो हम लोगों को मिल रहा है दैट इज 121.52 इंटू 10⁻⁵. इतना होल्ड, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा. इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज 1.2152 इंटू 10⁻³ होल्ट. ठीक है. या एज वी आर वेल नोन व्हाट इज इट, ये 10⁻³ होल्ट की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, इट इज मिली वोल्ट. मींस आप लोगों का आंसर कैसे होने वाला है, 1.2152 मिली वोल्ट. ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो. ठीक है, 10⁻³ वोल्ट मतलब 1 मिली वोल्ट. तो 1.2152 मिली वोल्ट. लेकिन अब देखो यहाँ पे और एक ट्विस्ट है. क्या है देखो, ये हम लोगों का आंसर मिला, कैलकुलेटेड आंसर हम लोगों को इतना मिल रहा है 1.2152, लेकिन टेक्स्ट बुक में आप लोगों का आंसर इट इज 0.122 ऐसे मिली वोल्ट दिया है, जो टेक्स्ट बुक का गलत है. ये आप लोगों को दिया हुआ है लेकिन ये गलत है. हम लोगों का आंसर कितना आता है
1.2152 मिली वोल्ट। ओके, तो ये भी आप लोगों को करेक्शन करना है। ये टेक्स्ट बुक में है 0.122, ओके, लेकिन ये गलत है, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैसे करस्पॉन्डिंग चेंजेस हम लोगों को अच्छे से याद रखने हैं कि क्या क्या करस्पॉन्डिंग चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जाम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मैं यहाँ पे वीडियोज में आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या टर्म्स आ रही है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. The value of mutual inductance of two coils is 10 millihenry. तो गिवन डाटा देखो क्या है, इट इज m इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी। ओके, मतलब क्या हुआ, 10 रेस टू माइनस 10 इंटू 10 रेस टू मिली मतलब 10 रेस टू माइनस 3, 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 मतलब 10 रेस टू माइनस 2 हेनरी। ओके, नाउ आफ्टर दैट वन, current in the one of the coil changes from 5 ampere to 1 ampere, means initial current I initial current कितना है, 5 एम्पियर है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे IF इसी के सामने लिखता हूं मैं, इट इज 1 एम्पियर। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है, dt इज इक्वल टू चेंजिंग टाइम 0.2 सेकेंड्स है। इज इट द करस्पॉन्डिंग चेंज इन टाइम। ओके, साथ में और एक वैल्यू दिया हम लोगों को, रेजिस्टेंस, इट इज R इज गिवन, R इज इक्वल टू 5 ओहम। हम लोगों को निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 सेकंड कॉइल में हम लोगों को निकालना है E2 एंड करस्पॉन्डिंग इंड्यूस्ड चार्ज देयर। ओके, या DQ। ओके, दीज आर द टू क्वांटिटीज दैट वी हैव टू फाइंड। ये हम लोगों को दो क्वांटिटीज निकालना है। ओके ना, तो पहला कैलकुलेट वैल्यू करते हैं यहाँ पे हम लोग। इंड्यूस्ड ईएमएफ in coil 2 is E is equal to minus m di1 by dt। ओके, दैट यू रिमेंबर। ये चेंज करंट किसका चेंज हो रहा है, ये जो आप लोगों को दिया है, करंट इन वन कॉइल। ओके, और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और द अदर कॉइल, आप लोगों को ये याद रखना है। तो यहाँ पे E2 इज इक्वल टू माइनस m इंटू di1 बाय dt, या आप लोग इसी को ऐसे लिख सकते हो, दैट इज m इंटू, अब चेंज इन करंट मतलब फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट होता है। तो यहाँ पे ये माइनस की वजह से मैं यहाँ पे I माइनस IF अपॉन dt लिख रहा हूं। ऑडिट, ये इसकी वजह से, दैट इज यहाँ का माइनस साइन हटाया, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल की जगह पे इनिशियल माइनस फाइनल ले रहा। तो E2 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, देखो m का वैल्यू कितना है, इट इज 10 raised to minus 2 into initial current into final, it is final minus initial, it is 1 upon time कितना है 0.2। ओके, दैट इज इक्वल टू, ये 5 minus 1 4 upon 0.2 हम लोगों को वो मिल रहा है। तो अब देखो, इट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 raised to minus 2 अपॉन 0.2। तो यहाँ पे यदि हम लोग उसको लिख सकते हैं 20 इंटू 20 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2। ओके, या इसी को आप लोग लिख सकते हो 0.2 वोल्ट, दैट इज E2 इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये हो गया इंड्यूस्ड करंट इन द सेकंड टर्म। तो इसी में सेकंड टर्म या सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। Now, general formula by Ohm's law, it is, we are well known that E2 is equal to I2 into R। ये हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को I2 is equal to क्या मिलेगा, देखो E2 अपॉन R। इट इज E2 0.2 है, R कितना हुआ
5 है, तो हम लोगों को इसका वैल्यू कितना मिल रहा है, देखो 0.0 हियर 0.2/5, ठीक है। या इसका वैल्यू हम लोग बाद में कैलकुलेट करते हैं, ये ऐसे रखा। नाउ I2 is nothing but current. What is the current? Current is nothing but the rate of flow of charge. तो dq by dt, ये जनरल फॉर्मूला ये हुआ, दैट इज इक्वल टू dq by dt। तो इससे हम लोगों को मिलेगा dq2 दैट इज इक्वल टू I2 इंटू dt, ठीक है। तो dq2 दैट इज इक्वल टू I2, इट इज 0.2/5 इंटू टाइम कितना है, देखो इट इज ऑल्सो 0.2, तो 0.04/5। ओके, तो हम लोगों को मिला कितना, 0.008 चार्ज है, इसलिए यूनिट कूलम। या इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इट इज 8 इंटू 10⁻³ कूलम। 8 डेसिमल पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट किया, और 10⁻³ मतलब मिली, तो 8 मिली कूलम आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। Got it? That is the charge induced in the second coil. Got it? तो हम लोगों को इसे दो टर्म्स या दो क्वांटिटीज यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, एन EMF ऑफ 96 millivolt means 96 millivolt EMF is induced in the windings of a coil when the current in the nearby circuit। तो हम लोगों को ES, सॉरी, तो पहले गिवन डाटा लिखते हैं, क्या दिया देखो, ES दैट इज इक्वल टू 96 millivolt, okay, means 96 into 10⁻³ volt, okay, that is given. Now what is second term is given, that is when the rate in the nearby coil is increasing at the rate of increasing of the current 120 ampere per second, मतलब ये di by dt, ओके। लेकिन ये सेकेंडरी कंसीडर किया तो इसको प्राइमरी कंसीडर करना पड़ेगा, इट इज 1.20 एम्पियर पर सेकेंड, और हम लोगों को निकालना है म्यूचुअल इंडक्शन। तो वी नो दैट, तो क्या आएगा देखो, हम लोगों को मालूम क्या है, दैट इज ES is equal to M into dIP by dt, okay, that is in terms of a magnitude we are getting this value, okay, that is M is equal to what we are getting, ES upon dIP by dt, ये जनरल फॉर्मूला होने वाला है, दैट इज इक्वल टू सबसे द वैल्यू फॉर ES 96 into 10⁻³ upon 1.20 dIP by dt, it is 1.20, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू, यदि हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं तो 12 से डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, ओके, 12 8s are 96, दैट्स व्हाई हम लोगों को मिला इट इज 80 into 10⁻³ ओके, इट इज यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इट इज हेनरी, तो 10⁻³ हेनरी मींस अगेन 80 मिली हेनरी, दैट इज नथिंग बट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ओके, सिंपल क्वेश्चंस आर देयर दैट यू हैव टू रिमेंबर, सिर्फ आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि क्या क्या गिवन टर्म्स है। तो पहला हम लोगों का काम होता है गिवन टर्म्स क्या है वो अच्छे से समझ लो, ओके। एक बार गिवन टर्म्स गिवन डाटा समझ में आया तो हम लोगों का काम आसान हो जाता है। गॉट इट? नाउ अब देखो, the primary and secondary coil of a transformer each have an mutual inductance of 200 into 10⁻⁶ हेनरी। तो अब लोग यहाँ पे गिवन डाटा लिखते हैं, तो क्या दिया है देखो, इट इज LP दैट इज इक्वल टू LS इंडक्टेंस,
That is self inductance is given. How much it is? 200 into 10 raised to minus 6 Henry. या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज 2 into 10 raised to minus 4 Henry. ठीक है. After that one, the mutual inductance between the windings is, means capital M is given. How many it is? 4 into 10 raised to minus 6 Henry. A mutual inductance है. And what you have to find? That is the percentage of the flux from one coil reaches to the other. Okay, तो हम लोगों को percentage निकालना है. Got it? Means percentage of flux linkage. ओके, इन शॉर्ट में लिखता हूं परसेंटेज ऑफ फ्लक्स. तो अब देखो, परसेंटेज ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल reaches the other, that is equal to. Now, तो यहां पे हम लोगों को ये परसेंटेज कैसे निकालना है वो देखो. तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों ने थ्योरी में एक डिस्कस किया था, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इनटू 100, दैट इज नथिंग बट द हम लोगों का परसेंटेज ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल टू द अनदर कॉइल. तो ये आप लोगों को याद रखना है. तो अब देखो, बट इस फॉर्मूले में हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है. इट इज m इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ ls इंटू LP. तो हम लोगों को ये फॉर्मूला मिला, m इज इक्वल टू k अब देखो ls इंटू LP सेम है, तो आप लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो. इट इज k इंटू LS या LP, बिकॉज अंडर रूट में है. तो LS लिखो या LP, इसका स्क्वायर होने वाला है, तो हम लोगों को इतना ही मिलेगा. ओके, तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ द फ्लक्स इज इक्वल टू, यहां से हम लोगों को k इज इक्वल टू कितना मिलेगा? m अपॉन LS. ठीक है, k इज इक्वल टू m अपॉन LS, द परसेंटेज ऑफ द फ्लक्स दैट इज इक्वल टू. No, that is equal to, क्या मिला देखो, it is m upon ls into 100. okay, that is equal to, m कितना दिया है? 4 into 10 raised to minus 6 into 100 upon ls 2 into 10 raised to minus 6, that is equal to. हम लोगों को कितना मिलेगा देखो, ये जो कन्वर्जन किया, ये मल्टीप्लाई किया, तो हम लोगों को मिलने वाला है. इट इज यहाँ पे कट हुआ ये 2, तो ये 10 रेज़ टू माइनस 6, 10 रेज़ टू माइनस 6 कट हुआ. LS, सॉरी LS यहाँ पे हम लोगों का 10 रेज़ टू माइनस 4 है, तो यहाँ पे हम लोगों को -2 मिलने वाला है. तो ये टुगेदर कट होगा, हम लोगों को मिला 2%. ओके, यहाँ पे ये 10 रेज़ टू माइनस 6 के साथ कट किया, तो हम लोगों को ये 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 ही मिलता था. और यहाँ पे नीचे 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4, ये 10 रेज़ टू 6 और 10 रेज़ टू 100 मतलब 10 रेज़ टू 2, ये कट किया, तो हम लोगों को ऐसे मिलता है. गॉट इट? तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो. गॉट इट? तो इट इज 2%. Now, next question there.
गिवन डाटा देखो क्या है ना, अ टोरॉइडल रिंग मेड अप ऑफ अ बार ऑफ लेंथ 1 मीटर मींस आप लोगों को L इज इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है. ओके, आफ्टर दैट वन डायमीटर 1 सेंटीमीटर मींस D इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है. ओके, मींस आप लोगों को इससे हम लोगों को रेडियस मिल सकती है, दैट इज R is equal to D by 2 means 0.5 सेंटीमीटर. ओके, तो हम लोगों का आंसर मिला 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. Got it? Now, नंबर ऑफ टर्न्स क्या दिए देखो, यहाँ पे 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर दिए, तो स्मॉल n का वैल्यू दिया है 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स. तो इसको आप लोगों को मीटर के लिए कन्वर्जन करना है, तो हम लोगों को मिला 1 सेंटीमीटर में 100 टर्न्स है, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर में कितने हो गए 10⁻4 पर मीटर. ठीक है, और म्यू जीरो हम लोगों को मालूम है, म्यू जीरो का कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स है, इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 SI यूनिट्स. ओके, अभी डायरेक्ट मैं SI यूनिट लिख रहा हूं. गॉट इट? और यहाँ पे हम लोगों को करंट दिया है, इट इज I is equal to 100 एम्पियर. These are the given terms. तो हम लोगों को वन बाय वन एक एक वैल्यू हम लोगों को निकालना है. तो पहला वैल्यू निकालते देखो क्या है, फर्स्ट वन क्या निकालना है देखो, सर्कुलेटिंग करंट सर्कुलेटिंग थ्रू द टर्न्स, दैट्स 100. तो पहले कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार, ये हम लोगों को पहले बी निकालना है. तो magnetic field inside the toroid. B is equal to mu 0 Ni. Okay, it is 4 pi into 10⁻⁻7 into 10⁻4 into I, it is 100. Got it? तो हम लोगों को मिलेगा कितना देखो, ये 4 into 3.14 into ये 10⁻4, ये 10⁻2, 10⁻6 हुआ, और ये 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻1, ये 10⁻+6, 10⁻⁻7. तो हम लोगों का आंसर मिला कितना देखो, इट इज ये 10 कट हुआ तो 4 into 3 दैट इज 12.56 हम लोगों को मिलने वाला है. तो हम लोगों का आंसर मिला 1.256. इट इज टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड. नाउ सेकंड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग. देखो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना हम लोगों को. L दैट इज इक्वल टू क्या जनरल फॉर्मूला था, म्यू 0 N स्क्वायर L इंटू A. ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थ्योरी वी आर डिस्कस अबाउट दिस टर्म. ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है. तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू N स्क्वायर, तो 10⁻4 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू L, इट इज 1 मीटर इंटू R स्क्वायर, एरिया इज नथिंग बट द पाई R स्क्वायर. ठीक है, तो L इज इक्वल टू 4 A पाई और A पाई, दैट इज अ पाई स्क्वायर इंटू A 10⁻⁻7 इंटू A 10⁻8. ओके, इंटू R कितना है 5 इंटू 10⁻2, तो स्क्वायर हो गया, तो 25 इंटू 10⁻4. ओके सॉरी, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का कन्वर्जन मैंने मीटर में किया है, तो ये -3 होने वाला है. ठीक है, सेंटीमीटर का 10⁻2 मीटर और ये 0.5 का 5 लिखा है मैंने, तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर कितना होने वाला है, इट इज -6. ओके, तो अब देखो इट इज इक्वल टू ये 25 इंटू ये मैंने 4 किया 100 इंटू पाई स्क्वायर, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10. एक्चुअली इट इज 9.8596, लेकिन यहाँ पे मैं 10 लेता हूँ. ठीक है, इंटू 10⁻⁻7 10⁻8, तो ये 10⁻1 हो गया और ये 10⁻6 है, तो 10 हम लोगों को मिला
5। गॉट इट। तो अब देखो ये 1000 हुआ, मीन्स हम लोग इसको ऐसे लिख सकते, दैट इज 1000 into 10 raised to minus 5, या you can able to write it is 10 into 10 raised to minus 3. Okay, it is Henry, या 10 मिली हेनरी। ओके, एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा 9.8596 या 9.86, इतना एग्जैक्ट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने पाई स्क्वायर का वैल्यू, सिंस यहाँ पे देखो लिखता मैं पाई स्क्वायर इज 10 लिया है। ओके, 9.86 के जगह पे 10 लिया है इसका जगह पे, इसलिए हम लोगों का आंसर 10 मिली हेनरी। ओके, ऐसे आया। गॉट इट। थैंक यू।